नेक्स्ट दैट इज नेशनल एग्जिट एग्जाम. एन एग्जाम जिसके बारे में आधे से ज्यादा लोगों को अभी तक नहीं पता क्या है, क्या होना है. इज इट रिप्लेसिंग नीट, इज इट नीट या सम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नीट. सो वी डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट जिससे सबके सारे डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाए एंड दे कैन एक्चुअली गेट बैक ऑन ट्रैक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम रादर देन बीइंग कंफ्यूजन कब होगा क्या होगा. So, hi everyone, I am Dr. Shivan And I'm Dr. Kanika. and welcome back to Dr. Duo. So today we have invited an expert with us who is a CEO of DBMCI and has been a part of a lot of decision making and has structured the most talked exam that is next. He is none other than Dr. Nachiket Bhatia and he would be helping and guiding us with all the questions we have related to next. Hey guys, and thank you so much Kanika and Shivan for having me here. Glad to help you out in any matter possible. Thank you so much. thank you sir for coming on this platform. So a lot of students and aspirants are asking about the questions and doubts related to next, and we've jotted them down and we would be asking you, and I think this session would be really helpful for all the aspirants. So let's begin with the first question. That is, first of all, let us know when will the next start. And what is next exactly? Yes. See, basically, next is national exit exam, and the biggest difference between today's NEET and the upcoming next is that next is going to be a licentiate exam. Its primary function is to give you a medical license of India. Its secondary function is going to give you your postgrad seat, whereas NEET is just about postgrad. So basically, next is going to happen like this. It will be like next one, internship, then next two. And all the three things, next one, internship, and next two, has to be given by everyone in the whole world trying to get an Indian medical license. Whether it is an Indian medical graduate or a foreign medical graduate, all have to come back, or as for IMGs after final prof, they have to give the next one, then internship, then next two. Next one will give you your temporary degree as well as your postgrad seat, the score of next one. And after that, internship compulsory in India, and next two. Next two is going to give you your medical license, the permanent medical license of India. So they have basically copied a little bit from USMLE and they have made this whole process. So next one, primarily a medical licentiate exam. Right. So sir, what about the final prof exams which are held by the university? Will they be abolished? No. The biggest myth right now that is going on is that the final prof is going to be replaced by the next one. It is not going to happen. All the professionals that earlier used to take place are still going to be in the same manner. The only difference is in final prof, like in our times, we used to get a temporary degree by crossing the final prof. Okay, but now final prof will be an internal examination, and then after final prof there will be an exam called the next one. When the student crosses next one, he will then get his temporary degree and then he will be able to start the internship. That is the whole process. So it's like we would be putting more interest into internship now, because usually NEET में क्या होता था कि हम internship पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे. So now coming to the next question, what would be the structure of the exam? मतलब कितने exams होंगे, duration of the exam, and how many parts would be there, and which subjects to focus on? So basically there are going to be 6 parts in this whole thing. A 3-day examinations, 540 MCQs throughout. The first day, and the exam is like divided between 2 parts per day, a pre-lunch and a post-lunch. Pre-lunch it is 120 questions, 3 hours. Post-lunch it is 60 questions and 1.5 hours. First day it is medicine and allied subjects. Now allied subjects can include anything that can come under medicine. It can be anatomy, it can be physiology, pathology, pharmacology, dermat, psychiatry, anything that can come under medicine. Part 2 on the first day will be pediatrics. Second part, second day it will be surgery and allied subjects in the same manner. Then it will be ENT. Third day it will be obs and gynae. Post lunch it will be ophthalmology. So this is how they have structured a 6-part 3-day examination and 540 MCQs. So it is going to be a long examination. Yes, and I think for this examination you have to be very thorough with your clinical skills, because बहुत ज़्यादा integrated type of questions would be there, and for that you have to be aware of all your
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी पूरे इसमें हेल्प होगा एंड अलॉन्ग विद दैट तुम्हारी पोस्टिंग्स जो कॉलेज की यूजुअली वी मिस ड्यूरिंग MBBS, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दैट. And I think this is the time when you have to be also solving MCQs along with your professional questions. Absolutely. So coming to this, what do you think is the ideal time to start the preparation, and what should be the strategy, I mean, to prepare? See, basically, today it's the right time. Basically, today it is the right time to say that you have to start from the day you enter the medical college, because this is the course on the very first day, and this is the time. Over the period of time, only the time starts reducing, but the course is actually increasing. कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट आ जाती है. आज फॉर एग्जांपल कोविड है, कोविड का इतना मटेरियल आ चुका है, ठीक है, हमने कुछ लगभग 40 घंटे की वीडियोस ऐड करी हैं. सो ऑटोमेटिकली थिंग्स गो द अदर वे अराउंड. तो अगर आज बच्चा नहीं कर पा रहा अपने आप को स्टार्ट, तो ही इज लैगिंग बिहाइंड. लेट्स बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस. सो अगर आप आज फर्स्ट ईयर में हो तो आपको आज से शुरू करना है. कंप्लीट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स इन योर सेकंड ईयर, थर्ड एंड फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स इन योर थर्ड ईयर ओनली, एंड फाइनल ईयर में रिवीजन ऑफ ऑल 19. दिस शुड बी द फर्स्ट, दिस शुड बी द 4 ईयर प्लान. एंड एक जो सबसे बड़ी मिथ चल रही है दैट व्हाई यू नीड टू स्टडी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स. ठीक है, क्यों पढ़ने? मतलब आज तुम दोनों मेरे आगे बैठे हो, तुमसे उससे पूछ सकते हो कि फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? आई मीन यू गाइस शुड नो, राइट? एमसीक्यू चल रहा तुम्हारे साथ, ठीक है, इट्स फॉर स्पीच. अब यही नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? अ 36-year-old मैन कम्स इनटू योर क्लिनिक विद अ कंप्लेंट दैट ही इज हैविंग डिफिकल्टी व्हाइल स्पीकिंग. व्हिच एरिया इन द ब्रेन कैन हैव द मोस्ट प्रोबेबल लीजन? आंसर ब्रोकर्स एरिया. ये कौन से सब्जेक्ट का सवाल है, तुम मुझे बताओ. विच सब्जेक्ट इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम? सब कुछ इंटीग्रेट हो रहा है, एनाटॉमी भी, फिजियोलॉजी भी, मेडिसिन भी. एग्जैक्टली, ये सवाल मेडिसिन का है. जब ये नेक्स्ट में आएगा तो ये सवाल मेडिसिन का है. लेकिन ब्रोकर्स एरिया कभी मेडिसिन में दोबारा पढ़ाया जाता है? एब्सोल्युटली नॉट. सारे फर्स्ट और सेकंड ईयर सब्जेक्ट ही तो मिलके क्लिनिकल बनाते हैं. फिजियो प्लस फार्मा इन अ क्लिनिकल सेटिंग इज कॉल्ड मेडिसिन. एनाट प्लस पैथो इन अ सर्जिकल एरिया इज कॉल्ड सर्जरी. बिना हड्डी के आप ऑर्थोपेडिक्स या सर्जरी कैसे कर सकते हो? सो अगर हमारे स्टूडेंट्स आज के दिन पे ये समझ जाते हैं कि दैट इफ दे आर ओनली फोकसिंग ऑन क्लिनिक्स, जो कि पहले कैसे होता था, पहले क्या सवाल आते थे नीट के अंदर? रेंज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, रेंज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. ये रट्टाफिकेशन क्वेश्चन है. कहने को मेडिसिन है बट एंड में रट्टाफिकेशन सिंगल लाइन क्वेश्चन है. आज का जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, याद रखना कि कैसे कॉन्सेप्ट तुम्हें रेस जिताते हैं. इस बार का नीट पीजी रैंक 1 2021 का इज कॉल्ड अमृत्या सेन गुप्ता, जिसने अराउंड 613 नंबर लेकर आया 800 में से 713. आई एम सॉरी, वो लास्ट 1.5 महीने से सर्जरी का JR1 था एम्स के अंदर, क्योंकि उसकी INICT में भी रैंक 1 आई थी. इन स्पाइट ऑफ दैट, शिवांग, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ हेक्टिक सर्जरी इज, वो भी फर्स्ट ईयर के अंदर. सोचो उस लड़के ने उसके बावजूद रैंक 1 लेकर आए. क्यों? एंड हाईएस्ट एवर मार्क्स इन द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द होल नीट पीजी हिस्ट्री. हाउ? कॉन्सेप्ट. रट्टाफिकेशन तब होती है जब भी रट्टाफिकेशन एग्जाम होता है ना, यू कैन सी दैट द होल रैंक्स आर एक्चुअली इवनली मैनेज्ड. ये कभी देखोगे ना, क्योंकि रट्टाफिकेशन एग्जाम में क्या है, आज तुम्हें हो सकता तुम मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो, लेकिन आखिरी बार जाते जाते मैंने LMRP की बुक पढ़ ली और उससे 3 क्वेश्चन मेरे आ गए, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए उसके आगे, क्योंकि रट्टाफिकेशन एग्जाम था. लेकिन जब भी एग्जाम कॉन्सेप्चुअल होगा, उस दिन द टॉप विल बी वेरी हैवी. राइट नाउ 713 में रैंक 1 थी और 610 पे रैंक 1000 थी. यानी 70 मार्क के अंदर 630 पे रैंक 1000 थी. 630 मार्क 70 मार्क्स के अंदर वी हैड 1000 रैंक्स. रैंक 2000 कहां पे थी? 610 मार्क पे. रैंक 3000 कहां पे थी? 590 मार्क्स में. तो पहली रैंक 70 नंबर में और दूसरी 1000 रैंक्स 20 नंबर पे. तो जब टॉप इतना हैवी होता है ना, तो वो हमेशा इसलिए होता है क्योंकि कंसेप्ट के अंदर हमेशा फाइट ऊपर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो जेन्युइन में पढ़ाकू बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो आगे जा रहे हैं. ये एग्जाम वैसा था. और जब पेपर रट्टाफिकेशन होता है देन इवनली स्प्रेड आउट होता है लेआउट. तुम देख सकते हो कि हर जगह पे हाँ ठीक है, टॉप भी 20 नंबर पे जा रहा है तो उसका आगे भी 20 नंबर पे जा रहा है. सो दैट इज एक्चुअली what is going to happen in next. So if you do not have concepts, अगर तुम्हें लगा तुम रट्टाफिकेशन मार के बस वहां पहुंच जाओगे, then I'm sorry, तुम्हारा उस एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा. But if you study first, second year subjects very thoroughly and then move to clinics, you understand the basics, you understand the clinical postings, then my friend, there is a chance that you can be the top 1000 in the next exam.
that is going to happen in next. That's completely true. I think a पूरा format of the exam has been changed. I think the first batch जब exam change हुआ था थोड़ा, that was our time only 2020 में, when we firstly saw that clinical questions and long questions, 10 lines वाले, 8 lines वाले, and I think we were able to do it. Here I'm not like just saying it. This is actually true that since I was a part of DBMCI, तो questions और MCQs और test series जो भी हमने की, and along with that notes, they were all from the very beginning clinically associated. They were never like रट्टाफाइड कि भाई एक लाइन दे दी, उसका ना तो क्यों बताया, ना why, ना what, nothing. It was always integrated in that manner. Especially I would say for the medicine, Dr. Mukesh sir, उनका भी हमेशा integrated ही होता था. So I think that really helped us to build the concepts. If suppose by any chance you were not able to do your postings, or you were not even concerned about clinical postings during MBBS, you were able to do that and put in your concepts if you were into a good coaching which were teaching you in a very integrated manner. And I think that is very true because that happened with me. Usually नीट पीजी के बाद 2020 के बाद भी लोग बड़ा डिप्रेस होकर आए थे कि पेपर तो बिल्कुल अलग ही आ गया, क्लिनिकल आ गया, हमें तो कुछ भी नहीं आता था. बट क्योंकि हमने वैसी कोचिंग ली, उन्होंने हमें उसी हिसाब से पढ़ाया, सो वो बहुत ईजी रहा उस कॉन्सेप्ट को लेके. एंड सिमिलरली नाउ ऑल्सो लाइक प्रीवियसली ऑल्सो यू टोल्ड अस दैट पीपल वर नाउ फोकसिंग ऑन क्लिनिकल ओनली फॉर दिस टाइम. एंड नाउ ऑल्सो वो डिविजन था, आई थिंक 20% फिर भी आए थे वन लाइनर्स, है ना. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे नहीं है कि यू जस्ट हैव टू बी टू वन ट्रैक की या तो सिर्फ क्लिनिकल पढ़ रहे हैं या तो सिर्फ वन लाइनर्स पढ़ रहे हैं. यू हैव टू क्रिएट अ नॉर्मल बैलेंस इन बोथ ऑफ देम. So let's go to the next question about what is the importance of images in next and all the exams which are taking place right now. See, images even in NEET PG are like very important because 30 to 40% questions come directly as a form of image. And images की पता best बात क्या होती है that once you see an image either क्योंकि normally what is there, your picture based memory is much more stronger than your word based memory. So जैसे आप image देखते हो ना, even as if I just quantify what an image is, जैसे आप image देखते हो आपको immediately पता चलता है कि आपको ये आता है या नहीं आता. In both the cases you are actually saving time in a time bound exam. अगर नहीं आता you move on to the next question, you save at least minute or two. अगर आता है so of course you are in good luck, you do not have to read that long question and then you can see यार हाँ इस image का 99% ये आंसर होता है. इस बार वाइब के अंदर लास्ट ईयर हमने वाइब के अंदर जितना पढ़ाया था, इस बार लाइक 95% इमेजेस डायरेक्टली वाइब से आई थी. सो जितने बच्चों से मैंने भाटे के अंदर बात कही थी, भाटे गुरुकुल के अंदर, दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि सर ऑल्दो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जस्ट बिकॉज दे आर अ डिफरेंट क्वेश्चन स्टाइल बट द इमेज वाज एब्सोल्युटली सेम. सो दे न्यू दैट ओके उन्होंने A/B को B/A कर दिया है बट दे कुड आंसर द क्वेश्चन. सो इमेजेस इफ यू सी दे आर रिलेटिवली इजी टू रिमेंबर एंड लाइक इजी टू मार्क. सो आई थिंक स्टूडेंट्स को इमेजेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ये चीज आगे जाके भी ना बहुत काम आएगी बच्चों के जब नेक्स्ट आएगा बिकॉज क्लिनिक्स के अंदर दे विल बी लाइक shown a patient showing some kind of sign and then they will be asked a clinical based questions. So इतने प्रकार के questions आएंगे उनको कि उनको बहुत फायदा होगा images का. So they should definitely put a lot of focus on that. Very true about this because मैं तो पूरी live example हूँ. We both had joined Vibe during our preparation year last year. तो I think बहुत ही questions तब भी at that time also directly they came from Vibe. True, so they were just completely from them and the way you have told जो questions images से related भी नहीं थे, still we were able to solve it due to the Vibe session. Absolutely. And also because उसमें वो जो भी lines and important topics, high yielding topics ही पढ़ाए जा रहा होता है and that is again very repetitive in terms of next or NEET PG. Right. So when is the next Vibe session taking place now? I think it's we are launching this year Vibe 2021 Vibe on 6th of December. So the admissions have already started. We have actually crossed 5,000 like in a day or so. But I'm expecting a lot of students to attend that. So but the Vibe is going to be online live this time on between 7th to 11th December. So I think all of them should keep this slot free because Vibe is something you have to attend. You cannot miss it. Right. And you'll definitely gain a lot out of it. In a very short time. Yes. Okay, so another question people ask is, suppose they have given next and they do not get the desired branch or seat, what options do they have? Do they have to leave the seat or do they retain the seat?
So there's a concept that I have made and even the government believes, I mean the government has given एक draft निकाला था जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा उन्होंने किया था. So what I believe is that the government will do this, that once you reach next one, okay, you will give the exam. Let's say that you get a good score, you are getting a seat. So they will say that either take a seat, start your internship, give the next two, start your GLship. और you say कि अभी मुझे PG नहीं करना, अभी I have to drop, अभी basically I have to work as a normal MBBS, I have to try for MLE, IAS, whatever it is. So government is saying, the government will say that you lock in your score. Let's suppose you got 600, the government will say that lock in your score, and for the next 3 years, this score shall remain with you. You can appear in any subsequent counseling, and whatever seat is available at 600, they will gladly give it to you. And then after 3 years of lock-in period, you can again give the next one and have a better chance to score a better score, of course. In those 3 years, you will not be able to give the next one again. You have, this score is locked in with you. Let's suppose that you get a less score. You have qualified the exam, but you have got a less score. Lock in करने लायक भी नहीं है और PG की सीट भी नहीं मिल रही. Then the government will say that drop 1 year, and after an year of dropping, give the next one again, and you have to choose the above two options: lock in your score or choose a PG seat to start your internship. Only then you can actually proceed forward in this. So I believe that this is what is going to happen. Okay, and what if we give next one and we fail in next two? So you will be considered a failure in next two only. You have to give the next two again after a certain period of time that is still not certified by the government. But you have to give the next two only again to qualify. But we can take the seat for post graduation. You have already what they are saying that after next one you will get the seat. You will do the counseling, then you will start the internship. Next two will happen after the internship. So what I believe is that maybe वो 1-2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम करा दें, बट अभी कहना मुश्किल है कि वो क्या करने वाले हैं. बट इतना I think 99% I'm sure that they are going to ask you to just give the next two examination again after a couple of months, so that तुम PG start कर सको अपनी. And if you fail next one or if you don't qualify, you're not eligible as a doctor also, right? You basically don't have any degree. till that Exactly, time. no. See that is the same है कि अगर आप फाइनल प्रॉफ में फेल हो गए तो आपको टेम्परेरी डिग्री नहीं मिलती थी हमारे टाइम पे भी. नहीं. सेम इज गोइंग टू हैपन हियर. अरे तो इसमें फाइनल प्रॉफ भी है और ये भी है, मतलब एग्जिट एग्जाम काइंड ऑफ हो गया ये. दिस इज एन एग्जिट एग्जाम. नो, फाइनल प्रॉफ तो आपका पहले हो गया. आप फाइनल प्रॉफ पास करोगे तो नेक्स्ट वन बैठोगे, फिर नेक्स्ट वन पार करोगे तो आपको टेम्परेरी लाइसेंस मिलेगा जिससे आप इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो. Right. So basically this is another blockade between your final prof and the internship. Okay. So from which batch is this system going to start? I think it's 2018 batch. Okay. So fine, 18 batch is soon going to give the exam. This time 16 batch there is, so hardly very less time is left. So I Very think less all time. of them should like start studying abhi se to proper wala to clear the exam, because the exam is not that easy. It doesn't even sound easy. So first batch तो हमेशा experimental होता ही है. So fine. So what about the FMGs? I think the FMG के लिए भी एक ड्राफ्ट निकला था जिसके अंदर इन लोगों ने बात कही थी कि that the FMGs will be given 2 examinations, next one के अंदर ही next one part 1, next one part 2, and then FMGs को सिर्फ 2 chances मिलेंगे. So very fortunately that draft has been taken back, because to be very frank, I was one person who was very against that 2 chances. Exam pattern जो सरकार को मन करता है वो पूछ सकती है, वो उनके हक बनता है, लेकिन किसी भी जो हमारे देश का बच्चा है उसको आप वापस आने के लिए कैसे मना कर सकते हो? सही बात है. तुम कह रहे हो 2 चांसेस के अंदर हमें नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा तो बाहर ही जाएगा ना. तो अपने ही देशवासियों को तुम देश निकाला दे रहे हैं, उससे बुरी बात नहीं हो सकती थी. So I was a very vocal person who was against the whole draft, so that has been taken back. But I believe that ये लोग FMGs के साथ भी I think they will get into the same system. FMG भी जब पार करके वहां से internship करके भी वापस आएगा, he has to also go through next one, internship next 2, compulsorily in India. Okay. So सरकार उनको वही तो internship देगी, किसी अब कहाँ देगी कैसे देगी वो मुझे आइडिया नहीं, बट सरकार ही उनको internship देगी, and उस internship को उनको necessary करना पड़ेगा इंडिया पे. तो आप कहीं से भी करके आ रहे हो, चाहे आपने इंटर्नशिप बाहर करी है या नहीं करी, आपको इंटर्नशिप इंडिया में करनी है, जरूरी है. Right. अच्छा, वो तो ड्रॉपर्स जिन्होंने ऑलरेडी नीट दे दिया है, दे हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप बट रैंक अच्छी नहीं आई, बट विल दे हैव टू गिव नेक्स्ट 2 आल्सो और ओनली नेक्स्ट वन विल सफाइस? ना, उनका के साथ क्या होगा, बेसिकली दे विल गिव द नेक्स्ट वन ओनली विद 2018 बैच. सो जब 18 तो जब रिजल्ट आएगा तो एक
फिल्टर लगेगा 18 बैच का, एक लगेगा 17 इन सीनियर बैच का। तो 17 इन सीनियर बैच है उनकी अलग लिस्ट बन के आएगी, रैंक 1 स्टेट वाइज जैसे बनती है, वो उसी साल पीजी शुरू करेंगे। जो 18 वाला बच्चा है वो पहले इंटर्नशिप करेगा और फिर अगले साल 2024 में पीजी शुरू करेगा। सो उनके साथ ये होगा 17 इन सीनियर बैच उसी साल शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आर देयर एनी सब्जेक्ट्स टू फोकस ऑन? दो यू हैव टोल्ड अस कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल इसके अंदर ना जो बेस्ट बात है करने का वो ये है कि दैट इस बार बच्चे को समझने की जरूरत है दैट यू कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन वन सब्जेक्ट, यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे कि अगर आपको मेडिसिन समझनी है तो आपको फिजियो से शुरू करना है, फिजियो प्लस फार्मा एंड देन यू हैव टू रीच मेडिसिन। अगर आप डायरेक्टली मेडिसिन पढ़ रहे हो ना, यू आर एक्चुअली फूलिंग योरसेल्फ। कहने को आपकी मेडिसिन खत्म होगी, लेकिन जब सवाल बन के आएगा ना, मतलब आज हम कोविड की बात करते हैं, यू गेट अ पेशेंट, क्वेश्चन कैसे बन गया, यू हैव अ पेशेंट हु इज कफिंग एंड स्नीजिंग, हु कंप्लेन्स ऑफ लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। तुमने क्या कहा? तुमने कहा जाके इनके टेस्ट करा के आओ, जाके एक्सरे करा के आओ, जाके HRCT करा के आओ। रिपोर्ट वापस आती है, तुम उसको देखते हो, तुम कहते हो डेफिनेट टेस्ट करा के आओ, RT-PCR के बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव वापस आती है तब तुम कहते हो इसे कोविड है। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन कहीं भी निकल सकता है बाहर। It can go to X-ray, it can go to HRCT, it can go to COVID, microbiology, it can go to RT-PCR, pure biochemistry, it can go to what? Loss of taste, loss of smell, it can go to pure anatomy, pure physiology. So अगर आप देखोगे तो आपका हर क्वेश्चन हर जगह जा रहा है। So स्टूडेंट को ये समझने की जरूरत है कि ऑल्दो से कोविड पढ़ लिया माइक्रोबायोलॉजी से, उसको ये समझ में आ गया RT-PCR, लेकिन क्वेश्चन बन के कोविड का आएगा, सवाल आएगा बायोकेमिस्ट्री से कि RT-PCR का फंक्शन बताओ। राइट। सो ही हैज टू स्टडी एवरीथिंग। आप चाहे किसी भी ईयर से शुरू कर रहे हो, आपको मैंने फर्स्ट ईयर का बता दिया, अगर आप सेकंड ईयर से शुरू करो तो पहले फर्स्ट सेकंड पढ़ो, फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ो, थर्ड ईयर में थर्ड फाइनल पढ़ो, फाइनल ईयर में ऑल 19 का रिवीजन। आप थर्ड ईयर में हो तो पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर पढ़ो, फाइनल ईयर में फाइनल ईयर और ऑल 19 का रिवीजन। आप ये सोचोगे कि टाइम कम है, नहीं मैं सिर्फ फाइनल ईयर पढ़ लेता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपको लगेगा मैंने 2 साल मेहनत भी करी और मेरा रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता ना, जब तक वो इतना बड़ा लक्यूना आप छोड़ के चल रहे हो तो रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। आपको पहले लक्यूना फिल करना अपना कि फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजियोलॉजी, हाउ द बेसिक रिसेप्टर्स इन एनाटॉमी बेसिक रिसेप्टर्स वर्क, देन मूव टू अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ओनली देन you are eligible to compete in the next. This is what I want to tell to each student who is listening to this interview, that उस लक्यूना को भरो तब आगे बढ़ो, अदरवाइज मेहनत भी करोगे और रिजल्ट भी नहीं आएगा। उसके बाद मुझे आगे कहोगे तो पहली चीज हर फैकल्टी या हर बंदा आपको यही कहेगा कि बेटा फर्स्ट सेकंड ईयर तो पढ़ नहीं रखा, थर्ड फाइनल ईयर कितनी बार भी दोबारा पढ़ ले, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं कंप्लीट हो रहे पूरे। एग्जैक्टली, स्ट्रांग विद योर बेसिक्स। एब्सोल्युटली। एक चीज और, तो जैसे इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है, सर आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट फ्रॉम बुक्स। लाइक लोग पूछते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं। लाइक आई माइसेल्फ हैव रेड हैरिसन इन माय MBBS एंड आई थिंक इट्स गुड, आई मीन फॉर योर ओन सैटिस्फैक्शन एंड इफ यू वांट टू गो फॉर फॉरेन एग्जाम्स एंड ऑल। बट जो नीट का अब पैटर्न चल रहा है, आई थिंक वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिजल्ट वो दे रहा है। इट्स बेटर कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो एंड आपका वही चीज जल्दी कवर हो जाएगा। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यार कोचिंग शायद बनी इसलिए है बिकॉज द बुक्स दैट हैव बीन गिवन इनटू मेडिकल स्टूडेंट्स आर लाइक ह्यूज, दे आर वॉल्यूमिनस, ह्यूमंगस है। आई मीन यू सी डेविडसन, यू सी हैरिसन, बेलीज हो गए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं। बच्चे को आसान भाषा में वही चीज पढ़ाना ही हमारा काम होता है। आई थिंक कनिका यू हैव स्टडीड विद अस इन 2019, हम 2018 से इंटीग्रेटेड पढ़ा रहे हैं। ये जो आजकल नए कॉन्सेप्ट आए इंटीग्रेटेड इज नॉट 2 faculties टीचिंग 1 subject, it is 1 faculty combining multiple subjects to teach you 1 topic. बिकॉज इतना ही टाइम है आपके पास। आपको ये अगर पैथो वाले सर आपको फिजियो, पैथो और मेडिसिन मिला के टॉपिक समझा देते हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया कैन बी टॉट लाइक दैट, देन देयर इज अ पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी। ये जो शो आजकल मैंने देखा है कि दैट हम लोग 2 faculties एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इट्स अ गुड वे बट इट इज नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबल वे इज जिसे हम पढ़ाते हैं 2018 से, एक फैकल्टी मल्टीपल टॉपिक्स बना के आपको एक टॉपिक समझाए ताकि आपके तीनों के MCQ सॉल्व हो रहे हो। It is not about understanding the concept, it is about utilizing the concept to solve the MCQ. एंड में सवाल निकल रहा है, एंड में आके नेक्स्ट तो सवालों का गुच्छा है। अगर वो निकल नहीं रहा तो आपको कितना भी कुछ आता हो, किसी को फर्क पड़ता है? Nobody cares. So we at Bhatia are just focused on making sure that you understand the concept and you know how to utilize the concept to answer the question, because that, my friend, is a very difficult task. Yes, very true. Also, a lot of people are asking that whether they should join face-to-face classes or the online classes. So, what do you think? Is there any difference? See, face to face is
always the best. मतलब right now I think Bharti is the only institute providing you all the 4 mediums. हमारे पास फेस टू फेस भी है, सैटेलाइट भी है, ऑनलाइन लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है. मगर जो फेस टू फेस होता है ना, आई मीन वेदर दिस इंटरव्यू वुड हैव बीन गोइंग फेस टू फेस, इट वुड हैव बीन मच बेटर. कम ऑन, नॉर्मल सी बात है, ठीक है. बट इट्स गोइंग ऑनलाइन लाइव तो इट्स सेकंड बेटर. एंड इसके बाद जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड के लिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट को खुद मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है. आई सीन सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो खरीद तो लेते ही गुरुकुल, मगर उनकी जेब में रहता है. जब आपसे 6 दिन बाद बात करो खोली, वो कहते हैं सर बिजी चल रहे थे. क्योंकि यार फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं, उनको अभी घूमना है, कॉलेज में जाना है, और शायद 2020 के बाद तो आप लोग अच्छे कॉलेज में गए हैं, तो गलती उनकी भी नहीं है. ऑनलाइन लाइव या अगर फेस टू फेस होता तो तुम वहां पहुंचते हो, तुम एक टीचर का डर होता है, तुम एक माहौल में बैठे होते हो, यू हैव एन ऑरा दैट इज गोइंग ऑन कि मुझे पढ़ना है क्योंकि साथ वाला ही पढ़ रहा है. देयर इज अनसेट पीयर प्रेशर. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये होता है कि हाँ यार पढ़ाई करनी है, दैट मोटिवेशन कम्स अलोंग. तो पता होता है कि हाँ यार 4 से 5 मेरी क्लास है, तो आई हैव टू रीच दैट टाइम. You make your plans accordingly. So face to face is always the best, but if not, then we have then there is online live lectures जो again schedule देता है, and then third is recorded. I am from e-Gurukul and still I'm saying third is recorded, because recorded में सबसे मुश्किल क्या है, आपको पढ़ाई के लिए वक्त निकालना है. पढ़ाई और वक्त का मंडे कभी नहीं आता. पढ़ाई और जिम का मंडे, I'm sorry, जो मंडे होता है ना कि मंडे से स्टार्ट करूंगा, वो कभी नहीं आता. सही बात है. हम भी मंडे ही ढूंढ रहे हैं अभी. वो कभी नहीं आएगा. अगला मंडे आ जाएगा, यार तो ट्यूसडे हो गया, अब अगले मंडे से करेंगे. ये तो है. एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई मतलब थ्रू द कोचिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. मतलब फेस टू फेस में दे आर अपडेटिंग यू विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, बट इन ऑनलाइन सिंस इट इज़ रिकॉर्डेड तो वो वही पुराना ही चलता रहता है, कुछ अपडेट्स नहीं होते. सो ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम वो फेस करेंगे. ये तो होता ही है ना यार. इसमें अंदर आपको बेसिकली व्हेन इट्स रिकॉर्डेड यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फिगर आउट द लेटेस्ट अपडेट्स योरसेल्फ. तो हमारे पास जो डीबीएम से लाइव है, दैट्स ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, तो उसमें क्या होता है, द कंटेंट रिमेन्स सेम एज फेस टू फेस. थोड़ा ज्यादा ही होता है उसमें. द स्टूडेंट हैज द फीलिंग कि ठीक है, आई एम सिटिंग इट अप, मैं घर पे ही बैठा हूं बट मेरी क्लास चल रही है. ठीक है, वो जो क्लास वाली फीलिंग है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ाई तो आपको अगर फ्री में पढ़ना चाहो ना, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप खोल के देखो, यूट्यूब भर रखा है. हम अगर बच्चे हमें पैसे देते हैं ना, उस सीरियसनेस के पैसे देते हैं कि हम बच्चे को कहते हैं कि यार पढ़ाई करना शुरू कर. वो बच्चा टेस्ट मिस करता है तो हमसे फोन करते हैं, वो बच्चा क्लास मिस करता है उसे फोन करते हैं. एंड में तो जो हमारी मेहनत है वो ये चीज है, यही चीज बच्चों को हम समझाते हैं बेटा इसी चीज के पैसे हैं, कि क्योंकि हम तुम्हें बार बार मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई करो, हम तुम्हारी फिक्र करते हैं, उस फिक्र की फीस है वो. बाकी पढ़ाने को मैंने इतने देखा, इतने बढ़िया फैकल्टीज है जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे होते हैं. पढ़ने वाले बनो, सब कुछ है. बाकी एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि भाई जैसे ई गुरुकुल है, सपोज इफ इट इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड थिंग अबाउट इट दैट यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड द फैकल्टी वुड रिप्लाई यू within hours. So I think that way also you are interacting. If you have any doubt with the recorded lecture, you can interact with the faculty. That will also provide you interaction जो बहुत needed होता है. And also faculty motivates you also through e-Gurukul only. Like I've also seen the post, उसमें एक post का भी section है जहाँ पे all the faculties are posting daily motivation stuff or daily updates. So again, that is a very good way to interact and to keep yourself updated. I think I've seen you interacting with the Dharma faculty also for some doubts or something. ठीक है, I think Yes, she was telling me that, so I think that's a good figure, because मैंने जब गुरुकुल बनाया था, मेरा जो विजन था वो ये था कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे ना, so he can be away from social media and get all the like videos, Q-Bank test and doubt solving in the app only. तो जो उसका मेडिकल फेसबुक हमने बनाया, दैट इज हाउ इट इज सपोज टू रन. उसको भी हम बेटर कर रहे हैं, इसमें हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है, जिसमें हम और बेटर करेंगे. इसमें फेसबुक स्टाइल ग्रुप्स डालेंगे, बट द स्टूडेंट को विद इन लाइक 6 months स्टूडेंट को कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फैकल्टी से बात करने के लिए. उसको हम ऐसा माहौल देंगे गुरुकुल के अंदर. Nice. So sir, I think we have covered most of the questions. One last question is, what guidance and advice will you give for the coming batch and the first batch who is going to give next? पहले दिन से पढ़ाई शुरू कर दो, पहले दिन से. ठीक है, अगर तुम्हें अश्विनी सर के लेक्चर्स एक बार एनाटॉमी पढ़ ली ना अश्विनी सर से, तो शायद तुम कभी जिंदगी में एनाटॉमी बोल नहीं सकते, बिकॉज उनका वो लेवल ऑफ एक्सीलेंस है.
सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है, फर्स्ट टू 4 वीडियोस देखो, देन ओपन करो बीडीसी, वही टॉपिक बीडीसी से पढ़ो फर्स्ट टू 4. अब 5th to 8th खोलो और 5th to 8th खोलो, देन वो बीडीसी से पढ़ो. इससे क्या होगा, तुमने अभी जो फर्स्ट टू 4 की बीडीसी को पढ़ाई करी है ना, दैट इज लाइक यू आर रीडिंग हैरी पॉटर एंड देन यू आर वॉचिंग हैरी पॉटर. सो यू कैन basically correlate कि हाँ यार Harry Potter is supposed to look like this, the ground glasses, the scar and everything. This is how you are supposed to learn. First to 4 videos, then पहले वीडियो, फिर बीडीसी से टॉपिक, वीडियो टॉपिक. अब इसमें नेक्स्ट की तैयारी कैसे होगी, यू एड द क्यू बैंक. गुरुकुल में हमने सारी वीडियो के हिसाब से ही क्यू बैंक दे रखा है मॉड्यूल. तो तुम फर्स्ट टू 4 का जो टॉपिक देख रहे हो, देन बीडीसी से पढ़ो एंड देन उसी टाइम उस टॉपिक के ही आपको क्या करने हैं, आपको क्यू बैंक लगाना है. आपको लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन साथ में चलनी चाहिए. अगर आप सस्टेनेबली कर गए 2 से 3 घंटे एवरी डे, तुम्हारी 1000 के अंदर रैंक है नेक्स्ट 2023, 24, 25, 26 के अंदर. दैट्स अ कंफर्म न्यूज आई एम गिविंग यू. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक ये वाला चीज़ मतलब मेरे को अब होता है कि काश ये हमारे टाइम पे भी इनिशियली फर्स्ट ईयर से ही होता है कि मैं वीडियो देखती समझती और हो जाता. Efforts भी तो बहुत कम हो जाता है concepts actually, बहुत हाँ. जल्दी ठीक हो जाते हैं रादर देन जो मैंने लास्ट 1 साल में पूरे दिन रात तक पढ़े हैं. उससे बेटर होता है थोड़ा थोड़ा पढ़ के 5 साल में पूरा हो जाता है वो सिलेबस. Right, सो नाउ द थिंग्स हैव बिकम वास्ट and also sources are multiple, but the point is कौन सा source तुम लेते हो, which reliable source you trust, and how well do you cope up and focus with that source. So I think this is all. Anything which you want to add on which we haven't asked? Yeah, I think you've covered everything almost, and सारे स्टूडेंट कह रहा हूँ कि जितने आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में करोगे तो इस एग्जाम को पार करने के लिए मिनिमम 3 साल तो आपको चाहिए. आप या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके वो 3 साल की मेहनत 1 साल में क्रैम कर सकते हो, जो कि बहुत कम बच्चे कर सकते हैं. आई थिंक करने का यू आर वन, सो दैट्स वेरी इम्पॉसिबल. ओके, ठीक है. और अगर आप 3 साल लगाना चाहते हो और आपके 3 साल की मेहनत नहीं हो पा रही, देन वो आपको ड्रॉप करके 2 से 3 साल लगाने पड़ेंगे, लेकिन 3 साल तो लगेंगे. तो जितने जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर चांस है, क्योंकि कोर्स तो है ही ना. आप सोचोगे कि मैं 2 साल के अंदर पूरा पढ़ लूंगा, जो आपकी बाकी कोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बेसिकली जस्ट नेटफ्लिक्स, आपको जिम जाना है, वो सब कुछ कट डाउन करना पड़ेगा. तो आर यू रेडी फॉर दैट? एन एवरेज स्टूडेंट इजंट. सो आई एम अ वेरी एवरेज पर्सन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सस्टेनेबिलिटी. कि ठीक है यार, अगर मैं 3 घंटे रोज चीज कर सकता हूं तो मैं उसको 10 घंटे रोज नहीं कर पाऊंगा. लेट्स स्टार्ट विथ 3 hours per day. So start small but start soon. That's my motto right now, and I want you to follow that also. ठीक है, all the students that are watching the video, please follow that. Start small but start soon. And if you have any more queries, you can contact me at Instagram. I am dr.nachiket Bhatia. You can connect with me over there. And अगर कुछ और any other question, Kanika, Shivang? No, we don't have any other questions. Thank you, sir. You have helped us a lot. It was into this amazing video. session Yes. actually. सारे doubts clear हो गए, खुद के भी हो गए doubts clear. Yeah, and also we'll link sir's Instagram account in our description box below, so you can check that out. And I think after this session, there is no doubt that what you have to do, how you have to study, how you have to plan for your exam. And I think it is good that if you start soon, the way sir has said, and starting soon is easy if you join a very reliable coaching institute. We both were the students of DBMCI, and I think it was a very pleasant experience going with them, and I think you should also start with it. And also now we are having that vibe session too, so जिनको भी images के लिए पढ़ना है, the upcoming batches 12th March is the date for next NEET PG. बड़ा short notice में बताया गया है. So vibe session is must attend. You should attend it on 7th to 10th of December. So thank you so much, sir. We really had an amazing session. Thank And you so if much, any guys. other- Thank you so much, guys. Always a pleasure talking to you. Thank you, sir. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. So I think a lot of questions have been cleared by the sir. And if you have any other doubts, just comment down so that we can ask and we can revert with the expert related to next. And also, if you like this video, do not forget to share this video with all the aspirants and the students who would be giving next.
And any other topic you want us to talk on, just comment down below. और also DM us on Instagram. Like we are very active on Instagram and continuously replying everyone. Yes. तो कभी-कभी अगर comment miss हो जाता हो, do DM us there. Yeah, so do not forget to like, share and subscribe to our channel, and let's reach 100K this year only. So bye everyone, take care. Bye guys.